नमस्कार दोस्तों, लिट ई सिटी यूट्यूब चैनल वेलकम्स यू बैक। आज का वीडियो जो है हमारा, इट इज अबाउट द शॉर्ट स्टोरी दैट पगली बाय D.R. शर्मा। वी विल सी अबाउट द स्टोरी, इट्स समरी, मेन थीम्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू द राइटर। The writer, Professor D.R. Sharma, he is a very distinguished academic author and professor of English. And he is widely known throughout the country for his contribution to literature and education in India. In fact, दोस्तों, इनका एक बहुत ही लॉन्ग और illustrious करियर रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी में, where he served at Department of Evening Studies. Now, Dr. Sharma has written many books, critical books, and he is widely known for those books. लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक नॉवल Miracles Happen लिखा है, और इसी के साथ 2 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस हैं इनके, Pastoral Connections and Traps and Discoveries. पेस्टोरल कनेक्शंस वो कलेक्शन है जिसके अंदर से द स्टोरी दैट पगली ली गई है। हिज स्टोरी इज बेसिकली, जो भी वो स्टोरीज लिखते हैं, दे गिव अस द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू रूरल एरियाज, स्पेशली ऑफ पंजाब, जहां से वो बिलोंग करते हैं। एंड देयर इज ऑल्सो अ विविड पोर्ट्रेयल, बहुत सुंदर उनका प्रस्तुतिकरण है इंडियन विलेज लाइफ, ए प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग, गहरी उनको समझ है ह्यूमन इमोशंस की, इंटरेक्शन बिटवीन सिटी एंड विलेज, ये सारी चीजें मेक्स हिज स्टोरी ट्रूली इंडियन इन स्पिरिट। अगर हम बात करें आवर प्रेजेंट स्टोरी दैट पगली, इट इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड इट रिवॉल्व्स around the lives of especially 2 creatures. One is Subedar Shamsher Bahadur. Subedar Shamsher Bahadur is a respected village figure. He is a retired military man, and the titular Pagli, जो title के अंदर है, it Pagli stands for a cow who is very spirited, who doesn't want to be controlled by anyone. और जो स्टोरी है वो नरेट की गई है एक यंग बॉय के द्वारा, whose family owns the cow, and the story describes relationship between the cow and the boy, किस तरह से boy cares for the cow, and what are the consequences जब uncontrollable, जिसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, ऐसी स्पिरिटेड काउ and the strong-willed Subedar who wants to protect his field. तो इन दोनों के बीच का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर नरेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वी आर टोल्ड इन द वेरी बिगनिंग कि नरेटर अपने विलेज को डिस्क्राइब करता है और इसके जो पर्टिकुलर कस्टम्स हैं। In fact, whenever somebody died in the village, कभी भी किसी की डेथ होती है इस विलेज के अंदर, the villagers would visit the house. ये कॉमन चीज है, हम सभी अपने आसपास की सराउंडिंग्स में दिस पर्टिकुलर इंडियन कम्युनिटी हैबिट को देख सकते हैं। ऑफर देयर कंडोलेंसेस, किस तरह से वो ट्राई करते हैं कि उनका जो दुख है, लॉस है, उसको वो कम कर सकें। Man would go alone and women would go in small groups to console the family. So this is the basic description of the background of the village. When the body is taken for the cremation, the last rites, जब उस dead body को ले जाया जाता है, the women would sit with the family, जिस फैमिली के अंदर डेथ हुई उनके साथ बैठते हैं, शेयर द मेमोरीज एंड द स्टोरीज ऑफ द डेड पर्सन। ये एक तरह से हेल्प करती है उस फैमिली को जिसको ये लॉस हुआ है, दैट दे कैन हैव सम काइंड ऑफ रिकवरी। सो ड्यूरिंग सच इवेंट्स द नरेटर टेल्स अस दैट स्पेशली 3 persons दे वर मोस्ट एक्टिव एट सच टाइम, वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं ऐसे समय पर। वन इज Kesar, who is a magic man, who actually he is kind of a person who manages many things. Then there is Gurcharan. Gurcharan is the pujari, the priest, and Munshiji is the school master.
मुंशी जी को whenever he gets this information, जब उनको पता चलता है that some such sort of incident has happened, he would close the school, स्कूल फौरन बंद कर देते, and he would join the villagers in morning. Then there were 2-3 shops in the village. Now 2 grocers जो common items रखते थे, they would close their shops as a sign of respect to the dead and the dead person's family. Now there was one particular shopkeeper, Dhanya, and he closed his shop only when some influential, some important, or we can say a VIP kind of person passed away. So this shows that even some persons wanted to keep on their business. This is the general background कि कैसा उस village के अंदर होता है, and this information is important क्योंकि इससे हमें idea लगेगा about the stature, about the we can say influence Subedar ji had on the villagers. क्योंकि narrator now tells us about the death of Subedar Shamsher Bahadur, who is a very significant figure in the village. Villagers, including Dhanya, जो rarely अपनी shop close करता है, he immediately stopped their daily activities and collect in the village areas. वहाँ सारे gather होते हैं, and then जो खेतों में काम कर रहे होते हैं, they come back home. And मुंशी जी also announced the closure of the school. तो जो narrator है, जो school attend कर रहा होता है, he also gets the news कि किस तरह से सूबेदार की death हो गई है, and he also comes to home. Now Gurucharan, the priest, जो basic goods सामान चाहिए होते हैं उस समय last rites के लिए, he goes there at the Subedar's house with mats, and the one dialogue tells everything about the Subedar, that imagine, jara sochiye, even the lion is dead. So Subedar is compared to the lion, the king of the village. Now narrator, जो एक बिल्कुल young boy है, he comes back home, वो अपने घर आता है, अपना school bag रखता है, and tells his mother कि देखिए सूबेदार की किस तरह से डेथ हो गई है. And mother, she is a very calm natured woman, and she says that it is both a good news and a bad news. It is obviously bad for Subedar's family. They have lost a member of the family. It may be a bad news for the village also, but it is a good news for their cow Pagli. यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं Pagli, which is name of the cow of the family of narrator. So the narrator begins to describe his cow Pagli. She is a very mischievous cow owned by his family, and she is known for her rebellious behavior. Rebellious in the sense that, okay, allow her and she will try to control her movement, लेकिन आप कोशिश करोगे कि उसके मूवमेंट को आप डिक्टेट करो या आप बताओ यहाँ नहीं जाना है, इधर इस टाइम आना है, and she would not be under your control. She always challenged those who try to control her. Ragbir, for example, the cowherd, the one who takes all the cows of the village for grazing, जो चराने के लिए गायों को लेकर जाता है, he took her charge during the day. दिन में उसको कोई दिक्कत नहीं है, because Pagli is also manageable during the day, and village herd के साथ वो वहाँ पर रहती है. However, he is very clear about one thing, कि एक बार शाम को मैं जब इनको चरा कर वापस घर ले आऊं, brought back home जब लेकर आ जाऊं, he was not responsible for any of her action. उसकी responsibility, उसकी duty वहीं पर खत्म हो जाती है, because जो mischiefs हैं, जो शरारतें हैं पगली की या जो एक्ट सबको परेशान करते हैं, वो एक्चुअली में आफ्टर इवनिंग ही स्टार्ट होते हैं. सो रघबीर सेज दैट आई एम ओके ड्यूरिंग द डे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द इवनिंग और आफ्टर द इवनिंग आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर हर एक्शंस. वो जो भी करती है उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं. तो उसका रीजन ये है कि आफ्टर सनसेट, जब शाम हो जाती है, पगली वुड डॉज हिम.
हिम नहीं, किसी को भी डॉज, डॉज करने का मतलब होता है चुपके से नजर बचा के निकल जाती है, या फिर इवन उसको कोई पकड़ने की भी कोशिश करता है, शी डजंट कम अंडर कंट्रोल। एंड इवन जो नैरेटर की मदर है, जिसके साथ पगली का एक बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप है, जिसको वो रोज मिल्क करती है मदर, जिसकी बात वो ध्यान से सुनती है, इवन शी इग्नोर्ड हर एडवाइस। तो वो क्या करती है, मदर उसको टोकती है कि पगली प्लीज डोंट गो, अपने इस पेरीमीटर, अपने एरिया से बाहर नहीं जाना, बट पगली इज अनस्टॉपेबल, वो नहीं सुनती है। वो कहां जाती है, शी वुड गो टू अ वाइल्ड पैच। वाइल्ड पैच है एक ऐसा एरिया जो लोकेटेड है बिटवीन द नैरेटर्स एंड सूबेदार शमशेर्स फील्ड। इन दोनों के खेतों के बीच में एक ऐसा एरिया है जहां पर पगली वुड गो। एक्चुअली में वो वहां जाने के बाद, उसके बाद कहीं पर भी वो सूबेदार के खेत में भी जा सकती है, एंड शी वुड डैमेज द क्रॉप्स। नाउ सूबेदार वाज ओरिजिनली पोस्टेड इन लाहौर। लाहौर के अंदर उनकी पोस्टिंग होती है मिलिट्री ड्यूटी पे। तो देयर वाज नोबडी हु कैन टेक स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ द फील्ड, जो पूरा सुपरविजन कर सके, देख सके कि कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है। एंड पगली टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। शी वुड ग्रेज फ्रीली एट नाइट, पूरी रात आराम से जितना उसका मन होता भरकर वो फसल खाती। जैसे विंटर का टाइम होता तो व्हीट क्रॉप, और समर का टाइम होता तो कॉर्न की क्रॉप, वो पूरा उसको रेवेज कर देती, नुकसान पहुंचाती। जब शी वॉज टोटली फेड अप, उसका पेट भर जाता, शी वुड रिटर्न टू हर पोस्ट, जहां पर उसको बांधा जाता है, एट मेंगर जस्ट बिफोर डान। सो शी वॉज हैविंग लाइफ ऑफ हर ओन, विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था। नोबडी इंक्लूडिंग नरेटर्स हेडमैन ब्रदर, जो गांव का पंच भी था, वो भी बहुत बार ट्राई कर चुका पगली को कंट्रोल करने की, बट नोबडी कुड टेम, कोई उसको टेम नहीं कर सकता था हर वाइल्ड वेज एंड हर डेली हैबिट, रोज की जो उसकी हैबिट थी, गोइंग टू सूबेदार्स फील्ड एट नाइट। नाउ अब नरेटर टॉक्स अबाउट हिज एंड पगलीज रिलेशनशिप। नरेटर और पगली क्या रिलेशनशिप शेयर करते हैं। संडे मॉर्निंग, बाकी डेज में तो द नरेटर वुड बी एट स्कूल, लेकिन ऑन हॉलीडेज, संडे मॉर्निंग्स, he would polish पगलीज हॉर्न, उनको वो सहलाता, rub her rump, ears, soft flash under her neck। तो एक जनरली एक बच्चे को बहुत पसंद होता है इस तरह से डोमेस्टिकेटेड पैट्स के साथ, काउज के साथ खेलना। एंड पगली वुड आल्सो रेस्पॉन्ड विद अ ट्विंकल इन हर आईज, इंडिकेटिंग अ म्यूचुअल बॉन्ड। पगली भी बिल्कुल ऐसे ही शो करती दैट शी लव्स टू बी फॉन्डल्ड बाय द बॉय। हॉलीडेज पर पगली वुड स्टैंड अप, जहां पर जो पास्चर है वहां पर वो ग्रीट करती उस नैरेटर को। व्हेन एक मैंगो ग्रोव एक आम का बगीचा, वहां पर नैरेटर जाता, बाकी कैटल वहां पर गैदर्ड होते। नैरेटर के पास कुछ पैट डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स थे, वो भी दे वुड आल्सो फील अफेक्शन फॉर पगली, वो भी उसके साथ, मतलब पगली वाज लाइक अ मदर फिगर टू ऑल दीज पर्सन्स। और ग्रो विथ फ्रेंडली मैनर, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, बताने के लिए कि यस वी आर आल्सो हियर। तो इस तरह से नैरेटर शोज के किस तरह से देयर वाज अ वेरी एमिकेबल रिलेशनशिप, एक बहुत ही दोस्ताना उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप था। पगली के उस स्ट्रेंथ के बारे में बताता है कि किस तरह से मिल्की, जो गांव का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लोमैन था, किसान जिसका अच्छा खासा बलशाली शरीर था, कभी कभी ही वुड ट्राई टू चेस पगली के पीछे भागने की कोशिश करता, उसको रोकने की कोशिश करता, लेकिन ही नेवर सक्सीडेड, कभी भी उसको सफलता नहीं मिली। जब भी ऐसा पगली को लगता दैट द बॉय और नैरेटर और मिल्की वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी पूंछ को रोल इनटू अ सर्किल, जो इस बात का इंडिकेटर होता है दैट शी इज फुली अलर्ट and ran like an arrow, leaving him far behind. नैरेटर फिर वो कहता है कि दो हर अनप्रेडिक्टेबल एंड वाइल्ड बिहेवियर, सब जने गांव वाले भी चर्चा करते हैं किस तरह से पगली हार्म्स द क्रॉप, कितना फसलों को नुकसान पहुंचाती है। ऑब्वियसली कंप्लेंट्स होती, बट
नरेटर स्टिल was in love with this cow. उसको बहुत ज़्यादा ये पसंद थी. पगली who was the most beautiful cow among the herd. सबसे खूबसूरत ये थी. Short, sharp horns, smooth tan skin, high head, long bushy tail. तो इस कारण जो पगली थी वो पूरे जो 500-600 cows थी उस गांव की, उनमें सबसे बेस्ट लुकिंग काउ थी. सो नरेटर भी वाज लाइक अ फास्टेस्ट रनर. वो गांव में सबसे तेज दौड़ने वाला था. कभी कभी ही वुड आल्सो ट्राई टू कैच पगली और रोप को यूज करता कि जैसे रोप को वो एक बेट बनाकर पगली को कैच करे, लेकिन ही आल्सो फेल, क्योंकि पगली तब तक तो उसके साथ रहती जब तक उसको लगता कि द बॉय वाज नॉट ट्राइंग टू रेस्ट्रिक्ट हर मूवमेंट, तब तक शी वाज ओके. लेकिन जैसे ही उसको लगता कि वो कंट्रोल करना चाह रहा है, शी वुड इवेड हिम. जब बार बार नरेटर ने भी ट्राई करके देख लिया, देन ही कम्स टू रियलाइज, उसको ये एहसास होता है देयर इज नो यूज ट्राइंग टू टीच सम सेंस इनटू हर. और उसने जो शेड्यूल टाइम्स था, हॉलीडेज का, संडेज का, इवनिंग का, तभी वो केवल पगली के पास जाता और वहां रेस्टिंग प्लेस जो थी वहां मिलता. अदरवाइज उसने पगली का जो पर्टिकुलर हैबिट था, जो एक सब्जेक्ट ऑफ इरिटेशन था फॉर मोस्ट ऑफ विलेजर्स, उस टाइम में पगली को कुछ भी कहना बंद कर दिया. और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता है नरेटर दैट he sometimes he wanted to milk Pugly, but he didn't knew the technique, किस तरह से इसको मिल्क किया जाता है. जब उसकी मदर मिल्क करती, he would sit there, और मदर जो है कई बार टीट्स को उसके पगली के थनों से जो मिल्क का स्ट्रीम है वो डायरेक्ट उसके मुंह में देती. Such was the innocent joys जो पगली नरेटर. अच्छा, पगली because she had nightly ventures, रात को वो इतना खा पी कर आती, तो she would give a lot of milk. उसके जो jars थे वो पूरे पूरे भर जाते थे. So this was a very very happy period for पगली, नरेटर and their family. नाउ सूबेदार खुद तो लाहौर में उनकी ड्यूटी थी. उनके जो दो बेटे थे, सुरजीत और बलविंदर, दे फेल्ड, दे वर नॉट अप टू द मार्क. वो इस लायक नहीं थे कि गार्ड कर सके अपने फील्ड्स को पगली के रैम्पेज से. जब सूबेदार फाइनली रिटायर्ड हुए, ही केम बैक एंड डिसाइडेड टू सेटल इन द विलेज. जब वो गांव के अंदर, वो विलेज के अंदर सेटल हुए, ही टुक द चार्ज ऑफ हिज फील्ड. और जब उसको पता चला द वाइड स्केल डिस्ट्रक्शन, कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है पगली के अंदर, तो वो ऑब्वियसली ही गो एंड मीट द नरेटर्स ब्रदर, द हेडमैन, एंड ही शेयर्ड हिज कंसर्न. उन्होंने अपनी चिंता बताई दैट लुक, योर काउ इज डूइंग सो मच डैमेज, इतना नुकसान पहुंचा रही है. नाउ द नरेटर्स ब्रदर सेड दैट यस ही अंडरस्टैंड. वो बोला कि हाँ, आई नो एंड आई फील अशेम्ड, बट I am helpless. मैं इसमें कुछ मदद नहीं कर सकता हूं because पगली is beyond control. The Subedar, who is now also habitual of discipline, of controlling others, because he has been retired from the military service. तो वो कहता है ओके, मैं आपसे एक बार ही बात करने आया था, नाउ आप कुछ नहीं कर सकते, आई विल टेक द मैटर्स इनटू माय हैंड. मैं इसको अपने हिसाब से डील करूंगा और अब आपको इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा. सुबेदार हैज ब्रॉट बैक विद हिम 10 स्टील बॉक्सेस, बड़े बड़े ट्रंक लाया था. देयर इज ऑल्सो अ डबल बैरल गन एंड 2 अल्सेशियन डॉग्स. अल्सेशियन जो होते हैं, दे आर हंटिंग टाइप ऑफ डॉग्स, वेरी फेरोशियस, जंगली भयानक कुत्ते होते हैं. और उनको देखकर जो स्ट्रीट डॉग्स थे उस गांव के, दे वर क्वाइट अफ्रेड ऑफ दीज सुपीरियर स्पीशीज, और वो उनसे दूर ही रहना पसंद करते थे. और सूबेदार सून बॉट अ व्हाइट मेयर आल्सो, एक सफेद घोड़ी उसने ली, एंड विद द राइडिंग दिस मेयर, इसके ऊपर सवार होकर ही वुड इंस्पेक्ट द फील्ड्स, अपने खेतों का जायजा लेता. डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय पगली ने कितना नुकसान करा है, एंड ही
ऑब्वियसली वॉज वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हुआ एंड डिसाइड करा उसने कि ही हैड टू स्टॉप पगली। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग बलबीर जो एक नरेटर की फैमिली का कॉमन फ्रेंड था, वो आता है और उनको बताता है कि सूबेदार हैड आस्क्ड बंता, बंता वाज लोहार, जो उस गांव का लोहार है, टू मेक अ स्पेशल जैवलिन, एक भाला बनाने को बोला है जिसका लॉन्गर हैंडल हो, शार्पर ब्लेड हो। और सूबेदार का जो स्टेटस और इन्फ्लुएंस है वो गांव में बढ़ता चला जाता है। देयर इज अ पर्टिकुलर गेटअप, जिस गेटअप के अंदर सूबेदार जो है वो मूव करता है, राइडिंग हिज मेयर, अपनी मेयर पे सवार होकर, गन स्ट्रैप्ड टू हिज बैक, अपने लगाए हुए, एंड अल्सेशियंस लीडिंग द वे। दिस पर्टिकुलर गेटअप जहां से भी निकलता है, विलेजर्स आर इन ऑ ऑफ हिम, उससे बहुत डर रखते हैं। Because he has worked with British officers for a long time, he has picked up certain English words, और गांव वाले जो मोस्टली इलिटरेट हैं उन पर वो एक रॉब भी झाड़ता है यूजिंग बेसिक इंग्लिश फ्रेजेस लाइक यस यस, नो नो, और ये सारे वर्ड्स जो है इंटिमिडेट करते हैं, डराते हैं विलेजर्स को। सो बेसिकली हिज रेपुटेशन बिकम्स वेरी वेरी जायंट, बहुत बड़ी हो जाती है। इन द इवनिंग सूबेदार ने अपने एक नया वरांडा उसको कवर कर दिया है टैचेड रूफ के साथ। देयर आर गैदरिंग्स वहां पर होती हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हट है जहां पर वो इंग्लिश वाइन देता। नाउ भजन सिंह जो कांस्टेबल था, उसने हमेशा गांव का लोकल देसी जो है वो अल्कोहल लिया था, लेकिन सूबेदार उनको ट्रीट करता है और उनको अपने प्लान्स बताता है कैसे he is going to take revenge against पगली। लेकिन कुछ समय बाद ही सूबेदार stopped serving the English wine और उसके बाद उसकी बजाय वापस शिफ्ट हो जाता है लोकल अल्कोहल, दैट इज अमलीज दतूरा। भजन सिंह who went there, जो सूबेदार के केवल इसलिए जाता है फॉर द इंग्लिश वाइन, जब वो मिलना बंद हो जाती है, he started coming back to the narrator's house, और तब वो बताता कैसे सूबेदार जो है वो ही हैज वेरी ऑडियस वेज, उसके तरीके बहुत अलग है, उससे जुड़ी हुई र्यूमर्स, उनके क्या कनेक्शंस हैं, वो सारी बातें निकलकर सामने आती। सून एवरीवन इन द विलेज, जो सारे जने थे, दे बिगिन टू टॉक अबाउट किस तरह से सूबेदार ने प्लान कर रखा है पगली को हार्म करने का, एंड इट बिगिन अ सेंसेशनल न्यूज। केसर और गुरचरण दे थॉट कि जो प्लान सूबेदार बनाता है दे आर बार्बरिक, वो बहुत जंगली है, बट नन ऑफ देम हैड दिस काइंड ऑफ करेज, उनमें ये हिम्मत नहीं है कि जाकर वो सूबेदार को बोल सके। एंड द नरेटर आल्सो, जब भी वो सूबेदार को देखता है, ही बिकम्स ट्रबल्ड एंड वरिड फॉर हिज काउज, उसको लगता है कि सूबेदार बहुत नुकसान पहुंचा देगा। ये तो बात हुई सूबेदार की, बट दिस हैज नो इंपैक्ट ऑन पगली, पगली पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। शी रिमेन्ड अनडेटर्ड, बिल्कुल उसको जैसी है वैसी की वैसी रहती है, एंड हर शाम को वो वहां पर जाती है, फील्ड्स में एंटर करती है। जब भी सूबेदार फाउंड हर ग्रेजिंग, वो अपने खेत के अंदर ग्रेज करता हुआ पाता है, देन ही वुड कमांड हिज डॉग्स, वो अपने अल्सेशियन डॉग्स को बोलता टू चेज हर, फोर्स हर। अब पगली क्या करती, शी वाज क्विक, ऑब्वियसली तेजी से वो दौड़ती और अपने बहुत जो स्ट्रॉन्ग लेग्स हैं उनका यूज करती किक करने को अल्सेशियन डॉग्स को। सो शी वाज नॉट डेटर्ड, वो डरी नहीं इनसे, बल्कि जो अल्सेशियन डॉग्स थे वो थोड़े थोड़े क्या होने लगे, पगली के इस काउंटर अटैक से डरने लग गए। सो दे बिकम हेजिटेंट, उनको अब सूबेदार बोलता भी तो भी वो इतना पास नहीं जाते, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ द किक बाय पगली। इसकी वजह से सूबेदार जो था, ही स्टार्टेड टू बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद द डॉग्स आल्सो, कि ये भी बेसिकली जो है हेल्प नहीं कर रहे हैं। और पगली भी देखिए, पहले देयर वाज नो काइंड ऑफ चार्ज अगेंस्ट हर, कोई भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं था। नाउ एवरी नाइट शी वाज अटैक्ड बाय द डॉग्स और वो सारी चीजें। शी आल्सो बिगिन टू फील एग्जॉस्टेड, कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से
वो उस तरह से अब नहीं फील करती थी फ्रेश या फिर टोटली अनचैलेंज्ड, तो उसके ऊपर भी असर हो रहा था। और बलबीर और दूसरे लोग जब जब आते, दे विल टेल द नरेटर्स फैमिली किस तरह से सूबेदार जो हो रहा है वो और फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो और वाइल्ड प्लान्स का सोच रहा है। नाउ सूबेदार ने अपने बच्चों से बोलता है टू ब्रिंग सम वेस्प, ततैये जो होते हैं उनको जला, उनको भूनकर, और टू कोट देम इन रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च में, एंड उसको अपने अल्सेशन डॉग्स को उनकी जो खुराक है उसमें वो दे देता है। एंड द रीजन इज उनका जो एग्रेशन है वो उससे बढ़ जाएगा, दे वुड चार्ज विद मोर फेरोसिटी, और ज्यादा उग्रता से वो चार्ज करेंगे। व्हेन नरेटर कम्स टू नो अबाउट इट, वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डर जाता है इस चीज को लेकर, स्कूल से छुट्टी लेता है टू मीट पगली एंड ट्राई टू बी मोर कॉशियस दैट नाइट कि प्लीज आज मत जाना। बट डिस्पाइट द वार्निंग, पगली जो है वो नरेटर को उस पर्टिकुलर स्पॉट पर जहां से उसका टर्न है वहां छोड़ देती है, एंड शी शोज दैट शी इज अनडॉन्टेड, उसको डर नहीं है इस बात का। That night सूबेदार used his aggressive dogs, जिनके ऊपर वो पर्टिकुलर वेस्प और रेड चिली का असर दिखता है, और उसके बाद अपने जैवलिन से, डॉग्स के क्लॉज से, और बुरी तरह से पगली को बार बार स्पाइक करते हैं, इंजरिंग हर रिब्स। शी इज वुंडेड ब्रूटली एंड शी समहाउ मैनेजेस टू एस्केप इनटू थिकेट। मॉर्निंग में जब वो आती है, शी इज सीवियरली ब्लीडिंग, जगह जगह से घाव हो रखे हैं। नरेटर की फैमिली तुरंत उसके वुंड्स को ट्रीट करने की कोशिश करती है, कैरोसिन ऑयल यूज करती है डिसइंफेक्ट करने की, उसको एक स्पेशल मील प्रिपेयर किया जाता है जिससे उसके जल्दी रिकवरी हो जाए। उसको दिन में रघबीर के साथ भेजना बंद कर दिया जाता है, और नरेटर जो है वो लगातार एक हैंड फैन का यूज करता है ताकि फ्लाइज को वो अवे रख सके उन ओपन वुंड से। उसी शाम को जो नरेटर है वापिस से सूबेदार को देखता है विद हु हैज अ प्राइड, ग्लोइंग प्राइड ऑन हिज फेस, और पूरा उसने वही का वही गियर अभी पहन रखा है। द नरेटर इज वेरी एंग्री विद सूबेदार, ही कर्सेस हिम कि हनुमान जी जरूर आएंगे और बदला लेंगे तुम्हारे इस क्रूअल एक्ट का। स्लोली पगली के जो वुंड्स हैं वो हील होने शुरू होते हैं, बट देयर इज अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, जबरदस्त एक चेंज आता है पगली के बिहेवियर के अंदर। शी बिकम्स नाउ ओबीडियंट, अब वो जो अपने हर्ड की लीडर बन जाती है, अपने एग्जाम्पल से सेट करती है, क्योंकि खुद रघबीर को ये कहना पड़ता है कि देयर इज नो काउ लाइक हर इन फॉलोइंग हिज इंस्ट्रक्शन, इसको एक बार बताना पड़ता है, एंड शी बेसिकली फॉलोज ऑल दी इंस्ट्रक्शंस। शाम को भी अपनी इवनिंग पोस्ट पर वो आ जाती है, कामली वेट फॉर द फॉर्डर, जो उसको मिलता है वो खा लेती है विदाउट एनी काइंड ऑफ रिबेलियस साइन, और मोस्ट ऑफ टाइम वो अब अपने काफ के साथ स्पेंड करती है, उसको लिक करते हुए एंड टेकिंग केयर ऑफ हिम। नरेटर की फैमिली को भी एक लॉस होता है, पर जब वो पहले सूबेदार की फील्ड्स के अंदर ग्रेज करा करती थी तो वो मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा थी, ऑब्वियसली वो क्वांटिटी जो है वो अब रिड्यूस हो जाती है, जो जार ब्रिम तक ऊपर तक बढ़ जाता था वो अब हाफ ही बढ़ता है। और वहीं ऑन द सेकेंड हैंड विद इन अ ईयर जो सूबेदार की हेल्थ है वो डिटेरिएट होनी शुरू हो जाती है, लगातार गिरती चली जाती है। विलेज के वैद्य हैं वो देखने आते हैं, सूबेदार के फ्रेंड जो बाहर रहते हैं वो अपनी तरफ से एक डॉक्टर को उनकी भेजते हैं, बट देयर इज नो वन हु कैन डायग्नोज, जो पता कर सके व्हाट इज द मेन रीजन फॉर दी सिकनेस जो लगातार उनकी बॉडी को वीक कर रही है। और इवन ये रूमर्स भी होते हैं कि सूबेदार एक्सपीरियंस नाइटमेयर्स, जिसमें वो चिल्लाते हैं हेल्प के लिए। सम से दैट इट इज बिकॉज ऑफ हिज क्रूअल एक्ट ऑफ harming the cow. So after long period of illness and suffering, Subedar, who was the lion of the village, passed away. जब नरेटर के ब्रदर जो हेडमैन है उसको न्यूज मिलती है, he immediately goes to his house. उसका ब्रदर जो है बलबीर के साथ वो तो बाकी सब चले जाते हैं, नरेटर की मदर बलबीर की मदर के साथ जाती है,
एंड नरेटर वो पीछे रह जाता है, ही इज ऑब्वियसली अ यंग बॉय, एंड वो ये सोचता है कि सूबेदार की डेथ के बाद शायद पगली अपनी पुरानी स्पिरिट को रिवाइव कर ले, वो पगली जो पगली हुआ करती थी वाइल्ड अनकंट्रोलेबल, शायद वो इसकी स्पिरिट वापस आ जाए। एंड द स्टोरी एंड्स विद नरेटर्स विश कि वापस से पगली को एक बार देख पाऊं, एनर्जेटिक, डेफिएंट, किसी के कंट्रोल में नहीं आने वाली, जो वो कभी हुआ करती थी। विद दिस द स्टोरी एंड्स। तो दोस्तों अगर हम देखें, ये स्टोरी हाईलाइट करती है डीप इमोशनल कनेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, पर्टिकुलरली जो नरेटर का लव है पगली के लिए। सूबेदार शमशेर सिंह वो जो लायन ऑफ द विलेज है वो रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ, लीडरशिप, कंट्रोल, ह्यूमन एजेंसी को। तो पगली और सूबेदार के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो आपसी स्ट्रगल है, वो रिप्रेजेंट करता है कंट्रोल बिटवीन ऑर्डर, सिविलाइजेशन, force one side and wildness, freedom and natural uncontrollable instinct on the other side. दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। वेरी सून वी विल कम विद अनदर वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।